Hello dear children, welcome to my EVS video class for 22nd October 2021. I'm sure children, you all are maintaining a good health, you all are fit and fine in the safe confines of your home. Keep on taking all the safety precautions children, keep on following all the COVID protocols and keep yourself safe. As you all can see on the board, we are continuing with chapter number 12, which is means of transport. So children, here I am before you with one more chapter from this, with one more video from this chapter. We have started with the exercises. First exercise we have already done, which was choose the correct option. In the previous class, we did name the following. ठीक है, जैसे ईवीएस में मैं हमेशा कराती हूँ कि जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं उनके अलावा भी मैं अलग अलग एक्सरसाइजेज और भी करवाती हूँ. ठीक है, तो जो एक्सरसाइजेज बुक में है वो एक्सरसाइज तो हम बुक में ही करते हैं. वी ऑलवेज डू द बुक एक्सरसाइजेज इन द बुक इटसेल्फ. लेकिन उसके अलावा जो मैं एडिशनल एक्सरसाइज करती हूँ दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. प्रीवियस क्लास में दैट इज यस्टरडे, कल मैंने कराया था नेम द फॉलोइंग. तो दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. एंड इफ़ यू डू नॉट राइट, आप नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी. बिकॉज ईवीएस में मैं बहुत सारी चीज़ें बुक के लेसन के बीच बीच में से भी देती हूँ. तो मैं ये सारा वर्क करवाती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस ओनली. ओके, सो आई होप you all write these in your EVS notebook. So we have done choose the correct option, which was A. Take the correct option. Then in the previous class we did name the following. आज मैं करूँगी fill in the blanks. Lesson में से कुछ एक fill in the blanks में करवाऊँगी. And after that we have matched the following. We have question answers and we have HOTS. And life skill of course is there. Okay. So today children, today I am going to do fill in the blanks. Okay. Fill in the blanks. Okay. Now the first one is, first I will write the blanks. ठीक है, अगर सारे एक साथ बोर्ड पे नहीं आते तो फर्स्ट आई विल राइट द सेंटेंसेस, उसके बाद फिर हम फिलअप करेंगे उसको. ठीक है. सो फर्स्ट इज MEANS, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड डैश. ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड डैश. सेकेंड वन, अच्छा ओके, आई राइट द वर्ड्स ऑल्सो चिल्ड्रन. Fill in the blanks so that it becomes easy for you. Fill in the blanks with the words given in the box. ठीक है, जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं. And the words are the first word is CARGO, cargo. TRAIN, train. VEHICLES, vehicles. TRAVELLING, traveling. And oil. Okay, these are the words. Now you have to fill up the blanks. अब मैं sentences लिखने जा रही हूँ. Blank space में आपको इन words में से correct word choose करके लिखना है. The first sentence is means
of transport are called dash. Second is the dash is the fastest means of land ट्रांसपोर्ट. ठीक है, थर्ड वाला भी नहीं लिखूंगी, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. फर्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड डैश. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नोन एज, पढ़ा था हमने लेसन में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नोन एज व्हीकल्स. क्या बोलते हैं? व्हीकल्स. VEHICLES. व्हीकल्स. ठीक है, जो जो वर्ड हम यूज करते जाएंगे वी विल जस्ट पुट अ स्मॉल टिक, जिससे हमें पता चले कि यस ये वाला वर्ड हो गया है, अब हमें दूसरा वर्ड यूज करना है, मतलब इस वर्ड को अब नहीं यूज करना है. फर्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड व्हीकल्स. सेकेंड क्या है? द डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. We have talked about so many means of land transport: car, bus, truck, tractor, train, jeep, van, auto rickshaw, e-rickshaw, cycle rickshaw, bicycle, scooter, motorbike. बहुत सारे means की हमने बात की. And out of all these means of land transport, which is the fastest one? The fastest means of land transport is the train. ठीक है, the train is the fastest means of land transport. So train also we have done. Now cargo, traveling and oil. 3 hours still left. अभी 3 sentences मुझे और लिखने हैं, तो आप ये दोनों लिख लो. Write these two and then I will erase them. ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड वाला आप लिखो, इसके बाद मैं इसको erase करके then I will be writing the next 3. Write it. You can always take a screenshot. अगर नहीं हो पाता, इतनी जल्दी नहीं लिख पाते हो, तो take a screenshot and then write. Everyone has written, and if not, then you can always, I hope everyone has taken the screenshot. तो ये मैं erase कर रही हूँ. 1 and 2, now 3, 4 and 5. Third is dash tankers are longer than cruise ships. Dash tankers are longer than cruise ships. This is the third one. Then fourth is the aeroplanes which carry only luggage. LUGGAGE. The aeroplanes which carry only luggage are called dash planes. And the fifth one is going from one place to another is called. अभी यहाँ पे आगे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ. ठीक है, is called dash. Is called or is known as dash. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें, now let us complete the sentences. The first one is dash tankers are longer than cruise ships.
ये हमने पढ़ा था कि कौन से टैंकर्स जो होते हैं वो क्रूज शिप से लंबे होते हैं. क्रूज शिप्स हमने पढ़ा, अल्योर ऑफ द सीज एंड ओएसिस ऑफ द सीज. दीज आर द टू क्रूज शिप्स जिसको हम पैसेंजर शिप भी बोलते हैं. दीज टू आर द बिगेस्ट पैसेंजर शिप्स इन द वर्ल्ड. बट ऑयल टैंकर्स, जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, दैट मीन्स द टैंकर्स विच कैरी ऑयल आर इवन लॉन्गर देन दीज क्रूज शिप्स. यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि वो ऑयल टैंकर्स कितने बड़े, कितने ह्यूज होते होंगे. सो इसमें क्या आंसर आएगा? OIL, ऑयल टैंकर्स. ऑयल टैंकर्स आर लॉन्गर देन क्रूज शिप्स. इसके बाद फुल स्टॉप भी होगा. ठीक है, ऑयल टैंकर्स आर लॉन्गर देन क्रूज शिप्स. मतलब ऑयल टैंकर्स जो है वो क्रूज शिप से भी लंबे होते हैं. सेकेंड है, फोर्थ इज द एरोप्लेन्स विच कैरी ओनली लगेज आर कॉल्ड डैश प्लेन्स. मतलब जो एरोप्लेन सिर्फ लगेज कैरी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मैंने बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन. वन विच कैरी पैसेंजर्स, दे आर नोन एज पैसेंजर प्लेन्स. जो एरोप्लेन जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, पीपल ट्रैवल. एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्लेन्स आर कार्गो प्लेन्स. ठीक है, जिसमें हम सिर्फ लगेज, जिसमें जो प्लेन सिर्फ लगेज कैरी करते हैं, दे आर नोन एज कार्गो प्लेन्स. एंड जो हमने पढ़ा, द बिगेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, एंटोनॉफ 225 Mriya, दिस इज अ कार्गो प्लेन. ठीक है ना, एंटोनॉफ AN 225 Mriya, दिस इज कार्गो प्लेन. मतलब ये पैसेंजर्स कैरी नहीं करता, इट ओनली कैरीज कार्गो, लगेज. और कॉल्ड CARGO, कार्गो प्लेन्स. ऑयल भी हो गया, कार्गो हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन वर्ड, दैट इज ट्रैवलिंग. सो गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज. एक जगह से दूसरी जगह जो हम जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ट्रैवलिंग. TRAVELLING, traveling. Okay, so children, you have to write these fill in the blanks in your notebook. यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है मुझे इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, मैं वर्बली आपको बता रही हूँ. हमने पढ़ा था इंग्लिश में ना कि मैसेज कैन बी वर्बल एज वेल एज रिटन. वर्बली बता रही हूँ कि यू हैव टू राइट दीज फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप्स इन योर EVS नोटबुक. ये आपको अपनी EVS नोटबुक में ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं. जो कल मैंने नेम द फॉलोइंग कराया था वो भी और ये भी. ओके, नाउ राइट दीज. एंड सिंस चिल्ड्रन वी स्टिल हैव टाइम, अभी भी टाइम है क्लास खत्म होने में, तो वी विल बी डूइंग वन एक्सरसाइज फ्रॉम बुक ऑल्सो. ठीक है, इट इज अ स्मॉल एक्सरसाइज, इसको भी आज हम करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, जो अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखवाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में से ही बुक में मैं मतलब एग्जाम में दे सकती हूँ. एग्जाम जब आपका होगा तो मैं इनके अलावा भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकती हूँ फ्रॉम द लेसन. ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं कुछ और भी दे सकती हूँ. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन. और अगर नहीं लिखा है तो आप यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट. वी हैव डन एक्सरसाइज A इन द बुक. टर्न टू पेज नंबर 76 चिल्ड्रन. ठीक है, इसको लिखने के बाद अभी स्टिल टाइम है तो हम थोड़ा सा ओरली डिस्कस कर सकते हैं. टर्न टू पेज नंबर 76, 77 इन योर EVS बुक. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. ये हमने कर लिया था. सेकेंड इज क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कम टू दिस वन, सी, मैच द फॉलोइंग. ठीक है, मैच द फॉलोइंग में क्या करना है? यू कैन सी द पिक्चर्स ऑन वन साइड, यू कैन सी द पिक्चर्स. ठीक है, 1 2 3 4 5, दीज आर द पिक्चर्स. एंड ऑन द अदर साइड नेम्स आर देयर. इस साइड में क्या है? नेम्स है. ठीक है, हमें क्या करना है? मैच करना है. वी हैव टू मैच द नेम विद द करेक्ट पिक्चर. ओके, फर्स्ट पिक्चर में क्या है? फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी इट इज द पिक्चर ऑफ अ शिप. शिप भी नहीं, इट इज अ सेल बोट. सेकेंड क्या है? सेकेंड इज द पिक्चर ऑफ अ कार. एक कार की पिक्चर है. थर्ड क्या है? रॉकेट है. थर्ड रॉकेट है. फोर्थ वन जो है वो हमें दिख रहा है कि दैट इज द शिप की पिक्चर है जो भी हमने यहाँ पे देखी. अल्योर ऑफ द सीज एंड ओएसिस ऑफ द सीज, दो हमने जो शिप्स की पिक्चर देखी उनमें से एक पिक्चर है. नेक्स्ट एक प्लेन की पिक्चर है, इसकी भी अभी हमने बुक में देखी. एंड उसके बाद एक
लैंड ट्रांसपोर्ट है. नाउ वी हैव टू मैच देम. ठीक है, अभी इसको भी हम वी विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई होप चिल्ड्रन एवरीवन हैज रिटन दीज फिल इन द ब्लैंक्स in your notebook. सबने अपनी EVS की notebook में ये fill in the blanks कर लिया है. In the next class we will be doing question answers. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.